Okay, so we have the question based on what we have learned in our previous session. We have started with a previous session about non-contiguous memory allocation. So in non-contiguous memory allocation, the first one, the paging method, whereas the address of a physical memory is a non-contiguous, which is used to avoid the which type of fragmentation, internal fragmentation or external fragmentation. By paging, we can avoid the external fragmentation. See, there might be a internal fragmentation, but the size of internal fragmentation will be, what is the size of internal fragmentation that we can elaborate at the end of this question. Okay, so we have the physical memory is divided into the equal size of block that is called as the page frame or just the frame. Your logical address space is also divided into the equal size of pages as that of a page frame called as the logical page number. The mapping from logical address to the physical address is done with the page, a table where the page table stores the base address of a frame number, and the logical page number is act as a index to the page a table. Now the problems are arises where the page table is stored. आपका page table कहाँ पे रहेगा? That we are going to address in this session. Just as in last sessions we have addressed that the your uh, memory size or the your address space is of n byte. Offset is of m byte. Then we have find out how many bits are used for the page number, how many bits are used for the offset. Now here the two information is given to you. First information is that the size of address is 8 bit. यानी आपका साइज कितने बिट का है? 8 बिट का है. अभी आपको पता है this is divided into two part. First part is for the page number and second part is the offset one. So from this 8 bit address, ये जो आपका 8 bit address है, ये 8 bit address में से ये टोटल इसका लेंथ कितना है? इसका टोटल लेंथ जो है वो 8 bit है. From this 8 bit address, how many bits are used for the frame or page number? The frame of page number is the first part or second part? First part. So for this first part, this is for 3 bit. So 3 bit is used for the page number. 3 bit is used for what? 3 bit is used for the page number. Then we want to find out. We want to find out the answer of this 4 question. Answer of this 4 question. So can you give me the answer of this last question? How many bits for page offset? So from this 8, the 3 bits are used for the page number. Then how many bits are used for the page offset? For a page offset, you are using the 5 bit. Total is 8 bit. So simple answer. Okay. So next question is that how many bytes is in a one page? अगर आपके पेज ऑफसेट के लिए 5 बिट्स यूज करते हैं तो एक पेज में कितने बाइट्स होंगे? जैसे कि हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा था उसमें हमने किया था what we have seen that there is a one bit that we are used for the पेज नंबर. एक बिट हम पेज नंबर के लिए यूज कर रहे थे. अगर वन बिट इज यूज फॉर द पेज ऑफसेट देन हाउ मेनी बाइट्स आर देयर? वी हैव द 2 बाइट्स आर देयर, 0 एंड 1. उसके लिए एड्रेस कितने जनरेट होंगे? वन बिट से 2 एड्रेस जनरेट होंगे. अगर मेरे पास हाउ मेनी बाइट्स आर इन अ पेज, एक पेज में एक पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स है मेरे पास? 5 बिट्स है. So how many bytes are there in one page? The number of bytes in one page is equal to the 2 raised to power 2 raised to power d, and 2 raised to power d क्या आएगा यहाँ पे? 2 raised to power 5 is equal to 32. तो एक पेज में कितने हैं? 32. हाँ, एक पेज में कितने हैं? 32 बाइट्स है. ओके, एक पेज में कितने बाइट्स है? 32 बाइट्स है. ओके, सो अभी ये दो क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आप आंसर देना चाहोगे? हाउ मेनी बाइट्स ऑफ फिजिकल मेमोरी? कितने बाइट्स का फिजिकल मेमोरी है? हमने कहा है कि 2 रेज़ टू पावर m बाइट्स का मेमोरी है. m इज व्हाट इन दिस एग्जांपल? m क्या है मेरा? 8 है. तो 2 रेज़ टू पावर 8 इज 128 और 256. 2 रेज़ टू पावर 8 इज 256.
हाँ, तो मेरा मेमोरी कितने बाइट्स का है? 256 बाइट का है। अगर मेरा एड्रेस स्पेस, अगर एड्रेस के लिए 8 बिट है, तो 8 बिट से मेरे कितने एड्रेसेस जनरेट होंगे? यूनिक कॉम्बिनेशन। हाँ, कितने यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे? 2 रेज टू पावर m, 2 रेज टू पावर m, यहाँ पे m कितना है? 8 है, तो 256। हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर? एक फ्रेम के लिए कितने बिट्स है? 2 बिट्स है, सॉरी 3 बिट्स है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 2 रेज टू पावर पेज नंबर। और यहाँ पे 2 रेज टू पावर पेज नंबर बोले तो कितना है? 2 रेज टू पावर 3। हाँ, यानी मेरे पास कितने पेजेस है? 8 पेजेस है। हाँ, सो हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर? 8 फ्रेम्स आर देयर। मेरे पास कितने फ्रेम्स है? 8 फ्रेम्स। हर एक फ्रेम में कितने बाइट्स है? 32 बाइट्स है। हर एक फ्रेम में कितने बाइट्स है? 32 बाइट्स है। अगर मैंने 8 इंटू 32 किया तो कितना आएगा? हाँ, क्योंकि मेरे पास देखो, मेरे पास कितने बाइट्स का मेमोरी है? 256 बाइट का मेमोरी है। अभी मेरे पास हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 8 पेजेस आर देयर। और हर एक पेज में कितने बाइट्स है? 32 बाइट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मेरा ये जो 256 आया है, ये तो आता है क्या? 8 पेजेस, और हर एक पेजेस में कितने बाइट? और 32 बाइट इज इक्वल टू ये मेरा फिजिकल मेमोरी आ जाएगा क्या? ये सारा है। 8 इंटू 32 कितना हो गया है? 8 इंटू 32 इज नथिंग बट 256। चलो, सेम क्वेश्चन बट आई एम गोइंग टू आस्क इन सम डिफरेंट वे। मेरा फिजिकल मेमोरी जो है 128 बाइट का है, और मेरा फिजिकल एड्रेस स्पेस जो है 128 बाइट में कितने हैं? 8 फ्रेम्स है। हाँ, तो मुझे फाइंड आउट करना है अभी हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन एड्रेस। हाँ, मेरे एड्रेस में कितने बिट्स होने चाहिए? हाँ, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, देयर आर द 8 बिट एड्रेस इज देयर। तो अभी आपके पास फिजिकल मेमोरी दिया है, और फिजिकल मेमोरी में फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया है। ओके, तो ने आंसर दिया है 128 बाइट्स। सो 2 रेज टू पावर, हाउ मेनी 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 128? So m is equal to what? So m is equal to a 7. So the answer, how many bits are there? 7 bits are there in address. अगर मेरा एक फ्रेम जो 8 फ्रेम्स है, तो 8 फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए मेरा? हाँ, हाँ, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 8। सो n इज इक्वल टू कितना हुआ? n इज इक्वल टू 3 हुआ। हाँ, बराबर है, n इज इक्वल टू 3 हुआ। तो अगर मेरा एड्रेस देखा जाए, तो मेरा एड्रेस, हाँ, सो माय एड्रेस इज व्हाट एड्रेस इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। हाँ, ये पहला वाला जो हो गया पेज नंबर हो गया, और ये क्या हो गया है? ऑफसेट हो गया है। अभी पेज नंबर कितने फ्रेम्स है? फिजिकल एड्रेस स्पेस 8 फ्रेम्स आर देयर। 8 फ्रेम्स के लिए कितना चाहिए यहाँ पे? 3 बिट चाहिए। मेरा टोटल एड्रेस स्पेस कितना है? 128 बाइट का है, यानी टोटल कितना हो गया? ये 7 हो गया। 7 में से 3 गया, तो ऑफसेट के लिए कितना बचता है? ऑफसेट इज ऑफ 4 बिट। तो हाउ मेनी बिट्स फॉर पेज नंबर? पेज नंबर के लिए कितने बिट्स लगने वाले हैं? पेज नंबर के लिए 3 बिट्स लगने वाले हैं, क्योंकि मेरा फिजिकल पेज और मेरा लॉजिकल पेज सेम है। हाउ मेनी बिट्स आर फॉर पेज ऑफसेट? पेज ऑफसेट के लिए कितने बिट लगने वाले हैं? 4 बिट लगने वाले हैं। सो सिंपल। ओके। हाँ, ओके, अगर इसमें कहा गया है कि कैन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस हैव ओनली 2 पेजेस, तो अगर मेरे पास 2 पेजेस है, तो हाउ बिग वुड बी द पेज टेबल? तो पेज टेबल में मेरा क्या होगा? सिर्फ 2 एंट्रीज होंगे। हाँ, एड्रेस स्पेस है ओनली 2 पेजेस, तो मेरा पेज टेबल में क्या होगा? ओनली 2 पेजेस होंगे। ओके, मेरे पेज टेबल में कितने पेजेस होंगे? ओनली, और 2 पेजेस होंगे। हाँ, ओके, सो ये भी आंसर हम सेव करके रखते हैं। ओके, जस्ट एज वी हैव मेंशन्ड दैट वी वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द फ्री फ्रेम्स। हाँ, फ्री फ्रेम्स के लिए आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, तो ये मेरा फ्री फ्रेम्स का लिस्ट है। अभी फॉर एग्जांपल एक नया प्रोसेस आया है। एक नए प्रोसेस में कितने पेजेस है? 4 पेजेस है। बराबर है। हाँ, अभी ये मेरा कौन सा है? ये मेरा फिजिकल मेमोरी है। दिस इज व्हाट? दिस इज माय विच टाइप ऑफ मेमोरी? माय फिजिकल मेमोरी। हाँ, अभी ये फिजिकल मेमोरी में से क्या दिखाई देता है कि जो ये ग्रे वाला है ना, ये ग्रे वाला जो है ये फ्री है। हाँ, ग्रे वाला जो भी है ये क्या है? ग्रे वाला जो भी है फ्री है। हाँ, ये जो भी है ये फ्री है। ये फ्री क्यों है? देखो यहाँ पे 14 वाला फ्री है, 13 वाला फ्री है, 15 वाला फ्री है। तो दीज आर द फ्री है, फ्री आर देयर।
फ्री लिस्ट इज दैट। अभी ये प्रोसेस ने, फॉर एग्जांपल वी कैन से दिस इज फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 डिमांड्स द 4 पेजेस, बराबर है। तो आपका ये पेज टेबल हो गया है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल होगा। हाँ, हर एक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग पेज टेबल हो जाएगा। तो उसको क्या मिला है कि उसको मिला है कि अभी उसको 4 फ्रेम्स अलोकेट करने हैं। तो 0 पे गया, पहला फ्रेम लिया, 14 है तो यहाँ पे पहला फ्रेम 14 डाल दिया। तो 14 में कौन सा पेज आ गया, 0th पेज आ गया, देखो 14 में। बाद में ये 13 वाला लिया, तो 13 वाला सेकंड पे डाल दिया है, तो सेकंड पे क्या गया, ये पेज नंबर 1 गया है। 18 पे पेज नंबर 18 का लिए कौन सा था, पेज नंबर 2 था, ये यहाँ पे 18 गया पेज टेबल में। अभी 20 आया, 20 पेज नंबर 3 के लिए हो गया है। ओके, तो अभी आपका फ्री लिस्ट जिसमें पहले आपके पास कितने बचे हुए थे फ्रेम्स, फ्री फ्रेम्स, आपके पास 5 फ्रेम्स थे। अभी कितने बचे हुए आपके पास, आपके लिस्ट में सिर्फ ओनली 1 पेज फ्रेम फ्री है, बराबर है। अभी वेन एवर द प्रोसेस वॉन्ट्स टू एक्सेस दिस वन, उसको ये पेज टेबल कहाँ पे मिलेगा। हाँ, दिस पेज टेबल मेमोरी में स्टोर है कि दिस पेज टेबल इज ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कि ये पेज टेबल मेमोरी में है। हाँ, या फिर वी आर हैविंग सम रजिस्टर्स आर देयर। हाँ, सो व्हाट आर द डिफरेंट हार्डवेयर सपोर्ट दैट वी रिक्वायर्ड। हाँ, बिकॉज एवरी एक्सेस टू द पेज हैज टू गो थ्रू द पेज टेबल। हर एक पेज का एक्सेस के लिए आपको पेज टेबल थ्रू जाना ही है। हाँ, therefore the page table implementation affects the performance of your memory management module। आपका परफॉर्मेंस किसके ऊपर से डिपेंड होगा, कि ये पेज टेबल का, क्योंकि सबसे पहले एक्सेस कहाँ पे मिलने वाला है। देखो अभी मेमोरी को इमीडिएट एक्सेस नहीं मिलेगा, पहले आपको क्या एक्सेस करना पड़ेगा, फर्स्ट वी वांट टू एक्सेस द पेज टेबल एंड देन वी कैन एक्सेस द फिजिकल मेमोरी। Okay, so implementation of the page table is very important. So there are different way to implement the page table. The and the method depends on the size of the page table। आपका पेज टेबल का साइज क्या है। so normally here we have seen that page tables are kept in main memory। तो मेन मेमोरी में जो अभी हमने देखा है, अभी जो हमने मेन मेमोरी का देखा है, ये वाले मेन मेमोरी में, इसी में हम क्या करेंगे, पेज टेबल को स्टोर करेंगे। मगर पेज टेबल कहाँ पे है, उसका मुझे एड्रेस चाहिए। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट टू द पेज टेबल, जैसे आपके पास सिस्टम में आपने लर्न किया ना, AREG BREG, वैसे कौन सा REG है, पेज टेबल बेस रजिस्टर। कभी कभी MCQ में आ जाता है, हाँ, कि विच रजिस्टर पॉइंट्स द पेज टेबल। तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, पेज टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट्स द पेज टेबल। अभी ये पेज टेबल का साइज कितना है। हाँ, जैसे हमने बेस एंड लिमिट देखा था, बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर, वैसे यहाँ पे क्या है, पेज टेबल लेंथ रजिस्टर विच इंडिकेट द साइज ऑफ द पेज टेबल, and whether your page table contains the 8 entry or whether your page table contains the 32 entry। स्टार्टिंग का एड्रेस किसमें होगा, मेमोरी में कौन से लोकेशन पे स्टोर है, ये स्टोर होगा पेज टेबल बेस रजिस्टर। उसका लेंथ कितना है या फिर वो पेज टेबल का लिमिट कितना है, वो किस में स्टोर होगा, पेज टेबल लेंथ रजिस्टर में। In this scheme, every data or instruction access requires the two memory access। दो मेमोरी एक्सेस कैसा है, पहला एक्सेस किसके लिए, पेज टेबल, क्योंकि पेज टेबल में भी किसमें है, मेमोरी में। तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपके फिजिकल मेमोरी हो गया एंड ये क्या हो गया, आपका पेज टेबल के लिए हो गया। यानी पहले क्या एक्सेस करना पड़ेगा, पेजिंग स्कीम में पहले एक्सेस करना पड़ेगा आपको फ्रेम नंबर। उसके लिए आपको क्या है, पहले पेज टेबल करना पड़ेगा, ये पेज टेबल से फ्रेम मिलेगी एंड देन वी कैन एक्सेस द डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन का एक्सेस करने के लिए आपको दो मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड है, एक मेमोरी एक्सेस नहीं रिक्वायर्ड है, दो मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड है। अगर दो मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरा मेमोरी का परफॉर्मेंस या मेरा फिर जो परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दो एक्सेस हो जाएगा। हाँ, because the memory access is to be done twice, once for accessing the page table and for getting the frame number and secondly for accessing the actual frame। ओके, तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, अभी हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है कि एवरी फंक्शन फ्रॉम योर प्रोग्राम वी आर नॉट यूज फ्रिक्वेंटली बट सम ऑफ द फंक्शन, जैसे आपने फॉर लूप का यूज कर रहे हो और फॉर लूप में 10 इंस्ट्रक्शन है, तो जब तक आप वो फॉर लूप का यूज कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, वही 10 इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस चाहिए, बार बार आ रहे हो, बराबर है, बार बार आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम,
जैसे कि आपने देखा है कि आपका मेमोरी हायरार्की जो है, आपका मेमोरी हायरार्की जैसे आपने देखा है कि आपके पास हार्ड डिस्क है, एंड देन हार्ड डिस्क के बाद आपके पास रैम है, एंड रैम के पास आपके पास है कैश मेमोरी। हाँ, कैश मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी। हाँ, ओके, सो ये कैश मेमोरी का क्या यूज है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैश मेमोरी? In place of saying as currently used data, I say that it store the frequently used data. हाँ, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज वाला डेटा है वो डेटा किस में होगा? कैश मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि कैश मेमोरी इज फास्टर एज कंपेयर विथ योर रैम। हाँ, जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस वाला डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, दैट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ कैश मेमोरी। इट्स साइज इज स्मॉल एज कंपेयर विथ द साइज ऑफ अ रैम, एंड इट इज अ कॉस्टली वन। Okay. Frequently use data in instruction. So similarly, the frequently used access page frames are stored into the associative memory. Where it is going to store? It is stored in a associative memory. अभी ये associative memory बोले तो क्या हो जाएगा? हाँ, कि आपके रजिस्टर जो है, हाँ, देखा जाए तो आपके मशीन में नियर अबाउट 50,000 के ऊपर रजिस्टर्स होता है। हाँ, तो रजिस्टर्स आर फास्टर. Registers are faster. CPU can directly access the registers. So we can use the associative register, and this registers your CPU or the memory management unit can search parallelly also, not sequentially. This is also called as the associative registers or the translation look aside buffer, TLBS. ट्रांसलेशन लुक असाइड बबल सॉरी बफर्स। हाँ, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन है। हाँ, पहला क्वेश्चन, which registers point to the page table? Second one, where the size of the page table is stored? Third one, to access the memory, to access the data or instruction by using a paging, how many memory access are required? 1 memory access, 2 memory access, 3 memory access, none of the above. And third one, how we can improve the memory access by using the associative register का यूज करके तो कैसे आप उसको ये कर सकते हो। यानी अभी हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द पेज टेबल, पहले हम देखेंगे कि वो एसोसिएटिव रजिस्टर में है क्या। अगर एसोसिएटिव रजिस्टर में है तो हम क्या करेंगे, उसमें से ओके, व्हाट विल हैपन? Okay, so what is going to be happen? We are having the associative memory. हाँ, स्टार्टिंग में क्या किया जाता था कि स्टार्टिंग में आपके पास डेडिकेटेड फास्ट रजिस्टर के करते थे। डेडिकेटेड बोले तो ओनली फॉर दैट पर्पस, बट वो कॉस्टली स्कीम था। हाँ, रजिस्टर देखा जाए तो आपके मेमोरी से रजिस्टर कैसे हैं, फास्टर है। हाँ, बट ये अभी डेडिकेटेड रजिस्टर में क्या होगा, जैसे मेरा पेज टेबल का साइज इंक्रीमेंट होगा, मुझे नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी इंक्रीमेंट हो जाएंगे। हाँ, दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज नॉट दैट मच यूजफुल, बिकॉज जैसे मेरा पेज टेबल का साइज इंक्रीज होगा वैसे ही मुझे वो डेडिकेटेड रजिस्टर इंक्रीज करने पड़ेंगे, बगैर रजिस्टर्स आर द हार्डवेयर, सो दैट वी कांट डू इट। ओके, सो अभी आपने 3-4 क्वेश्चन वाला देखा है पॉइंट, तो टीएलबी से कैसे एक्सेस हो जाएगा। हाँ, तो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्च है। हाँ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी हैव द पेज नंबर्स एंड फ्रेम नंबर्स, जैसे पेज टेबल है वैसे ही है। हाँ, एड्रेस ट्रांसलेशन, इफ पी इज इन एसोसिएटिव रजिस्टर, अगर आपका पेज नंबर एसोसिएटिव रजिस्टर में है तो इमीडिएटली वी विल गेट द फ्रेम नंबर फ्रॉम दैट। अगर नहीं है, हाँ, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, अगर नहीं है तो वी कैन टेक इट फ्रॉम द पेज टेबल एंड पुट इट इनटू द एसोसिएटिव मेमोरी। Otherwise, get the frame number from page table in memory, and that we can put it into the associative memory. So by this way, what is going to be happen? We are having the faster implementation of the accessing the page table. Okay, तो ये आपको डायग्राम समझाता है कैसे है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि whatever the CPU generates the logical address. Logical address is divided into 2 part. हम ऑफसेट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कि ये आपका TLB जो है, हाँ, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर और द एसोसिएटिव रजिस्टर्स और एसोसिएटिव मेमोरी, we are not going to use it at all for the
द ऑफसेट, ऑफसेट जैसे के वैसे होगा। तो अभी इन प्लेस ऑफ स्टार्टिंग में सर्चिंग इन द पेज टेबल हम किसमें सर्च करेंगे, ये टीएलबी में सर्च करेंगे। हाँ, तो टीएलबी में सर्च करने के बाद मेरे पास टू ऑप्शन है, आइदर इट विल फाउंड इट और नॉट फाउंड। अगर फाउंड है, मिला, तो उसको हम बोलेंगे टीएलबी, अगर नहीं मिला तो उसको बोलेंगे हम टीएलबी मिस। हाँ, और देखो यहाँ पे ये जो है ना पेज नंबर, ये कैसे सर्च कर रहा है, सबके लिए एरो दिखा है, यानी दिस पेज नंबर इज सर्चिंग इन टीएलबी और सर्चिंग इन एसोसिएटिव मेमोरी इन अ पैरेलल फैशन। तो पैरेलल फैशन में है तो उसका एक्सेस टाइम कैसे रहेगा, लोअर रहेगा, एक्सेस टाइम कैसे रहेगा, फास्टर रहेगा। हाँ, टाइम टाइम कम लगेगा। तो टीएलबी में है वो पेज नंबर के लिए, तो उसका हम जो फ्रेम फ्रेम का एड्रेस है वो एड्रेस लेंगे एंड वी आर जनरेटिंग द फिजिकल एड्रेस। अगर टीएलबी में नहीं है, टीएलबी में मिस हुआ, तो वी कैन गो इट फ्रॉम द पेज नंबर एंड टेक इट दैट फ्रेम का बेस एड्रेस। So we will get a frame का बेस एड्रेस either from TLB और from the पेज टेबल। तो स्टार्टिंग में वो डायरेक्ट पेज टेबल में जाएगा क्या, डायरेक्टली पेज टेबल में नहीं जाएगा, पहले कहाँ पे देखेगा, वो टीएलबी में देखेगा। अगर टीएलबी में है, ओके, इमीडिएटली एक्सेस कर दिया, हाँ, इमीडिएटली आपको फिजिकल एड्रेस मिल गया। मगर टीएलबी में नहीं है तो क्या हो गया, हाँ, अगर टीएलबी में नहीं तो क्या हो गया, टीएलबी में नहीं तो पेज टेबल में से लेना पड़ेगा। Okay, if the TLB, if the page number is not in TLB, it is called as the TLB miss. A memory reference to the page table must be made. तो उस टाइम पे आपको पेज टेबल के लिए मेमोरी करना, मेमोरी एक्सेस करना ही है। हाँ, और वो जो पेज नंबर और पेज टेबल आया, जैसे ये मिस हो गया है, कौन से पेज नंबर के लिए मिस हो गया है और कौन सा एड्रेस है, और किस में डालेंगे हम, यहाँ पे टीएलबी में डालेंगे। बट अभी इससे एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका टीएलबी जो है, आपका एसोसिएटिव मेमोरी जो है, इसका साइज भी ज्यादा नहीं है, स्मॉल है। हाँ, ओके, तो ये फुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा, वो फुल होगा। अगर तो फुल होगा तो क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को डिसाइड करना है कि विच रजिस्टर फ्रॉम दिस वन इज सिलेक्ट फॉर द रिप्लेसमेंट। बराबर है, कौन सा तो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा तो भी क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज जो है, इसका साइज लिमिटेड है। हाँ, इसका साइज आपका ज्यादा हो सकता है, मगर इसका साइज आपका क्या है, लिमिटेड। ये जो रजिस्टर है इसका साइज लिमिटेड है। अगर ये फुल हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई तो भी एक को हम रिमूव करेंगे और बाद में फिर हम टीएलबी मिस होने के बाद वो पर्टिकुलर पेज फ्रेम नंबर को वहां पे ऐड कर सकते हैं। ओके।